हाँ जी संदीप जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। किस तरह लग रहा है जी हवाई च? सर अमेजिंग, ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने हैं या पर्सन या मेंबर बनाने हैं या पर्सन जो है, पर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫॉरएवर ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ 5 ਤੋਂ 6 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫॉरएवर ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫॉरएवर ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਨ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫॉरएवर ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਫॉरएवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਪੂਰਾ 100 ਦੇ 100% ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਚ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲਸ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫॉरएवर ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾ 3 ਜਾਂ 4 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਚੈਕ ਨੀਅਰਲੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 115 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈਕ ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ। ਵਾਓ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਚੈਕਸ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਜੋ ਇਨਕਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 115 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫॉरएवर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫॉरएवर ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫॉरएवर ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਸ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾर्म, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। क्या हवाई दा बीच किस तरह लगे? सर जबरदस्त, अमेजिंग। मैं ਹਵਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 4-4 5 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾਈ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੀਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। और आप दूसरे नालों थोड़ा डिफरेंट करांगे ताकि अपनी ही लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो पाएगा। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच सर। ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਓ, ਐਤਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਲੇਸ ਇਨ ਯੂਰਪ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ।
गुड मॉर्निंग सर। एंजॉय यहाँ पे लंदन में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मजा ही आ गया यहाँ पे। एक सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे फॉरएवर एक ऐसी कंपनी, नकली मल्टीनेशनल कंपनी में किसी में भी जोर नहीं हो सकता कि यहाँ लंदन के अंदर मेरे को पहुंचा दे, और एक साथ में पर्सन ऐसे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे को यहाँ तक पहुंचा दिया। मनदीप सर, थोड़ा सा मैं आप चाहूंगा कि हमारे लिए एक 2 मिनट 2 शब्द बोल दें, जिससे सारी टीम को एक मैसेज मिले कि फॉरएवर है क्या, किस हिसाब से हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं और क्या लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। सर टीम, आप देख सकते हैं कि फॉरएवर की बदौलत आज हम लंदन में घूम रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लंदन में, यूके में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है। यहाँ की जो बेस्ट चीजें, जो 7 वंडर्स में आती हैं, ऐसी चीजें, ऐसी जगह पे हम घूम रहे हैं। लंदन आई, लंदन ब्रिज, ये हमने बचपन से बुक्स में सुना होता है, बट यहाँ आपको देखने का, एंजॉय करने का मौका मिलता है। रॉयल डिनर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और परसों बहुत जबरदस्त रैली होगी जिसमें लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का लोगों को प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ये चीजें हम शायद सपनों में भी सोच नहीं सकते। अगर आप फॉरएवर में मेहनत करते हैं तो आपको वो चीजें मिलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा सभी को एक ही मैसेज है, बहुत ज्यादा मेहनत करें। नेक्स्ट ईयर मैं अपने साथ एटलीस्ट 150-200 लोगों को लेके आऊंगा। आई वुड विश कि आप में से कोई ना कोई होना चाहिए। जस्ट थिंक दैट यू कैन। अगर आप सोच लोगे कि आपने करना है, आई एम देयर टू सपोर्ट। मैंने सपोर्ट करनी है। आप नहीं तो आपकी जगह पे कोई और आ जाएगा। फॉरएवर इज ऑलवेज देयर। इसने ग्रो होना ही होना है। अगर आप सोच लोगे तो आप भी हमारे साथ ग्रो हो जाओगे, अदरवाइज हम तो ग्रो हो ही रहे हैं, फॉरएवर ग्रो हो ही रहा है। बेटर है कि किसी और बंदे की बजाय आप सोचें, आप ग्रो होएं, आप हमारे साथ चलें। सर, और एमके ग्रुप का पावर का थोड़ा सा बताएंगे सर, जो मैंने फील किया एम है, जो एमके ग्रुप से आगे जा पाएगी। सर 2 मिनट सर, इस ताकत के बारे में आपसे सुनना चाहूंगा सर। टीम ऑफ कहने की बात नहीं है, पूरा इंडिया जानता है कि जो हम करते हैं वर्ल्ड को बहुत बड़ी बात है। इसका बेनिफिट लें। हमारी टीम में से 22 लोग आज लंदन आए हुए हैं। ऐसे पहले भी लोग पेरिस, इटली, यूएस, पूरा वर्ल्ड इस पावर का, इस चीज का बेनिफिट लें। जो आप कर सकते हैं यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते। ये ऐसी ड्रीम लाइफ है जो 3-4 साल में आपको मिल जाती है। अदरवाइज भी तो लोगों ने 25-30 साल, 40 साल मेहनत करनी है। आप यहाँ 2-2.5 साल मेहनत कर लो, ये 7 स्टार लाइफ आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक टीम, बेस्ट ऑफ लक, सी यू देयर इन लंदन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। सो जाग जाओ और आ जाओ मीटिंग के अंदर। जो लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं वो भी आ जाओ, जो इधर उधर के काम कर रहे हैं वो भी आ जाओ, है ना। ताकि अब आज जो आपके इससे पहले 6 बजे वेबिनार हुआ है, उस वेबिनार से आपको कितना ज़्यादा फायदा मिला, जिसमें दो बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स टीम फायर के आकर आपको इतना बढ़िया गाइड करके गए, आपके न्यू पर्सन को गाइड करके गए, और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट किया कि आप अपने साथ नए इंसान को बिजनेस में लेकर आओ और उसको आगे फिर बिजनेस में आगे बढ़ाओ। राइट। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप। सो वी आर हेयर एएस एंड अबव, असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव, है ना। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव का मतलब क्या है। एक एएस जो कर रहा है आदमी, उस आदमी ने क्या किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर किस लिए किया। उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर किस लिए किया, उसने आपके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर में इन्वेस्ट किया 25 से 30 हज़ार रुपया, 35 हज़ार रुपया, 36 हज़ार रुपया, और अपना एएस किया, है ना। मतलब कि आपके साथ आज तक कई लोगों ने एएस किया होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर किया होगा। किसी ने आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया, ज्वाइनिंग करी, ऐसे ही, राइट। अब किसी ने एएस किया, किसी ने ज्वाइनिंग करी, पर लेकिन क्या हुआ, वो एएस के बाद फॉरएवर को छोड़ गया, आपको छोड़ गया, है ना। कुछ ऐसा हुआ, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे। आपके साथ ज्वाइनिंग हुई, बंदे ने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, कहीं ना कहीं आज भी ऐसे ही मीटिंग हुई है, और आपको कई लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया होगा कि यार मुझे ये बिजनेस करना है, और फिर उसके बाद उसने 5K की बिलिंग करी, या फिर 2 सीसी किया, 2 सीसी में आपके स्टार्ट और जर्नी पैक लिया, फिर भी क्या हुआ, वो आपका एएस आपके साथ बना, पर लेकिन एएस बनने के बाद वो फिर भी आपके साथ नहीं चला।
कितने लोग होंगे आपके साथ ज्वाइन हुए होंगे और एएस करके छोड़ गए होंगे? क्यों छोड़ गए? क्या रीजन है? अब आप सोचो कि उसने एएस किया, एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चाहता था कि भाई मैं अपना आगे अपना यहाँ पर करियर बनाऊं। उसको लगा था कि ये एएस इसलिए उसने किया। पर आपके आपके साथ क्यों नहीं चला वो? उसने मतलब कि एक बार तो सोचा होगा कि यार मैं यहाँ पर आके सॉरी, ये यहाँ पर आके अपना करियर बनाता हूँ, है ना? पर लेकिन क्यों क्यों नहीं वो आगे चला? क्या प्रॉब्लम हुई? उसने जिसने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, उसने भी कि सोचा होगा कि यार मैं करूं, और उसने भी डिसीजन बनाया होगा। मतलब कि एक बार तो बंदा तैयार हुआ ही था, एक बार तो बंदा रेडी हुआ था ना। पर क्यों आपसे वो मैनेजर नहीं बना, सुपरवाइजर नहीं बना, असिस्टेंट मैनेजर नहीं बना, सीनियर मैनेजर नहीं बना, सोरिंग मैनेजर नहीं बना? क्यों? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है जो लगता है जो है, जो मेरे को जैसे लाइक अभी आप बोलते हैं रिटेंशन। लोग करोड़ों लोग फॉरएवर के अंदर लाखों लोग आ रहे हैं, पर लेकिन उसमें से सिर्फ 1% या 2% या 5% लोग कामयाब हो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या रीजन है ना? फॉरएवर में जो दूसरी टीम्स हैं इंडिया के अंदर, वहां पर तो 1% की भी रेशो नहीं है, हमारी तो फिर भी 50% रेशो है कि हम रिटेंशन में नंबर वन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। पर लेकिन क्या प्रॉब्लम है, हमारी 50 कम क्यों है? 100% रिटेंशन क्यों नहीं है? रीजन वाई? रिटेंशन हमने करनी है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि एक आदमी आया, उसने कहीं ना कहीं इसने सोचा कि मैं यहाँ पर फॉर एवर करता हूँ और मैं यहाँ पर कदम रखता हूँ, मैं 30,000 रुपये दे देता हूँ, पर फिर भी वो आपसे संभला नहीं। मतलब एक टाइम तो उसने दिमाग में सोचा ना यार मैं कर लेता हूँ। क्या रीजन है? क्या रीजन है उसका? आप सब जो काम कर रहे हो, कईयों के मन में अभी भी चल रहा है कि यार मैं करूं ना करूं, मेरे को 1 महीना हो गया, मेरे को 2 महीने हो गए, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं बंदा आता है प्रेजेंटेशन में बैठता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन देखता है कि जैसे कई ने आज वेबिनार देखा, कईयों ने पहले 15 मिनट में वेबिनार छोड़ दिया, कईयों ने 30 मिनट में छोड़ दिया, कईयों ने 1 घंटा देखा, देखने के बाद आपकी कॉल्स नहीं उठाई होंगी, कईयों ने तो ज्वाइनिंग भी डाल दी मेरे सामने, बड़ी सारी ज्वाइनिंगों के मैसेज आए, सर मेरे साथ तो ज्वाइन हो गया बंदा। और कई ऐसे थे कि अभी मेरी कल बात हो रही थी एक बहुत बड़े लीडर के साथ जिससे मैं बैठा था। ही सेड कि सर आपकी जो ट्रेनिंग होती थी 82 सेक्टर के अंदर, एक बंदे ने वहाँ ट्रेनिंग लगाते लगाते अपने ट्रेनिंग लगाते लगाते ईमेल कर दी अपनी कंपनी को, ये नहीं कि नीचे उतर के, ट्रेनिंग खत्म होते ही वहीं बैठ के उसने ईमेल करी कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ आपके साथ, अपनी कंपनी के साथ। 10 साल से वो जॉब के अंदर था वो, और उसने ट्रेनिंग लगाई मेरी, 82 सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग चल रही थी, और वहीं बैठे बैठे रिजाइन कर दिया। बाहर निकलने से पहले पहले रिजाइन करके उठा। ऐसी ट्रेनिंग थी। क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमारे साथ बंदा आया और उसने ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि यार जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ूं, एक साइड में करूं, और मैं फॉरएवर के अंदर अपना 100% दे दूं? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा डर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है। हर एक की, हर बंदे की हार और जीत के पीछे हमारा खुद का एक हाथ होता है कि मैं जीत रहा हूं, मेरी जीत में हम तो बोलते हैं कि मैंने मेहनत करी, मैंने आगे किया, मैंने चला, मैं चला। जीतने के बाद बंदा अपनी मैं करता कि मैंने काम किया। मैं अगर खड़ा ना होता, मैं वो वाले सिचुएशंस ना देखता, मैं गिर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे जेब में, मैंने उस टाइम पे खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, और मैं आज चल पड़ा। पर जब हम हारते हैं तब हम ब्लेम डालते हैं, उसकी वजह से हार रहा हूं मैं, हमारा बिजनेस का मॉडल ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस का काम ठीक नहीं है, मेरा यार सीनियर ऐसे ठीक नहीं है, मेरे को बंदे मिले वही बंदे ही घटिया थे, हमारा एरिया ही घटिया, यहाँ पर लोग पैसे ही नहीं निकालते, हमारा सिस्टम ही खराब है, ऐसे होता है, वैसे होता है। जब कमी की बारी होती है तो हम किसी और के ऊपर ब्लेम डालते हैं, अपने ऊपर नहीं डालते कि मैं खुद से खुद कैपेबल नहीं हूँ, कि मैं प्रॉपर क्या है कि मैं खुद से नहीं चला, मेरे अंदर कोई कमी थी। मैंने एक दिन एक बंदे को सुना, बहुत ही बढ़िया, अपने टीम में बहुत तगड़े लेवल पे मैनेजर हैं, 30 35 40 मैनेजर हैं उनकी टीम में, हरसिमरन जी।
मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने क्या बोला कि यार आपने, वैसे तो ही इज एनिमल लवर, सारे बहुत एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं, पर लेकिन आप खुद से बताना दोस्तों, एक कुत्ता है, डॉग जिसको हम बोलते हैं, एक डॉग है यार, सड़क पे जब हम चल रहे होते हैं, आज तक आपने लाखों किलोमीटर सफर किया होगा, सबसे ज्यादा आदमी, सबसे ज्यादा जानवर कौन सा मरा हुआ आपको रोड पे दिखा है? सोच के बताओ, रोड पे कौन सा जानवर सबसे ज्यादा दिखा है आपको? आप पता क्या बोलोगे? आपको भी मालूम है कौन सा? डॉग। सबसे ज्यादा जानवर हमें मरा हुआ मिलता है डॉग। हमारी गाड़ी के आगे जाता है, हमारी बाइक के आगे रह जाता है, और हमें भी मरवाता है, हमें भी गिरा देता है। वो डॉग क्यों मरता है? क्या रीजन है उसका? सबसे ज्यादा वो मरा हुआ मिलता है। कभी बिल्ली देखी है? बिल्ली आपने, कैट, कैट मरी हुई देखी है आपने रोड पे? बहुत कम देखी होगी। पर डॉग आपने हर जगह जगह पर देखे होंगे, वो आपको रोड पे मरा मिलता है, वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। क्या रीजन है उसका? क्या रीजन है? सोच के बताओ। वही जो आप सोच रहे हो। वो कभी आगे कभी पीछे, एकदम से पीछे भाग लेता है तो आपको देख के कभी आगे चले जाता है, कभी फिर भाग लेता है, कभी पीछे रह जाता है। मतलब कि वो डिसीजन नहीं बनाता। आपने सुना होगा बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली आराम से आपके आगे से जाती है और उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक बार नाप तोल के डिसीजन लेती है और रोड को पार कर देती है लाइट देखते ही, या ऐसे दिन में भी। पर लेकिन कुत्ता आगे पीछे बिना देखे चल रहा होता है, या आगे चल जाऊं या पीछे चल जाऊं, एकदम पीछे को भाग लेता है। मतलब कि यहाँ पर फॉरएवर के अंदर आपने एएस कर लिया है, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया है, पर लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि डिसीजन नहीं लिया है कि मेरे को फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए करनी है कि नहीं करनी। दिस इज द बिग थिंग। सारी उम्र के लिए फॉरएवर करनी है कि नहीं करनी। इसका रीजन क्या है? क्यों कि हमने लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर करनी है? जिसने मेरी ट्रेनिंग्स लगाई हैं आज तक, जिन्होंने ऑफलाइन ट्रेनिंग्स लगाई हैं, वो बंदों के डिसीजन लाइफ टाइम के लिए बने हुए हैं। वो कहते हैं कि सर 4 साल भी हो जाए ना एएस लेवल पे, हम नहीं छोड़ेंगे, हमने तो फॉरएवर करनी है। आपके ऐसे तरीके हैं, सारा कुछ है। क्या रीजन है ऐसा? मेरे को सुनने के बाद क्यों लोग नहीं छोड़ते फॉरएवर? अब इसका रीजन क्या है? डिसीजन कैसे बना? क्या हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो डिसीजन क्या है? आपके साथ जो बंदा एएस बना वो क्यों छोड़ गया फॉरएवर? आपके साथ कितने से एएस बने होंगे? 5 10 15 20 एएस बने होंगे, या फिर किसी ने ज्वाइनिंग डाली होगी, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड दिया होगा, लिंक से ज्वाइन हुआ होगा, पर लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। ऐसा क्या है? क्या है ऐसा डिसीजन? क्यों आपका वो उसका डगमगा रहा है? उसका डिसीजन क्यों डगमा रहा है? क्योंकि हमें अभी तक नॉलेज नहीं है। अब मैं अगर जाके किसी को प्रेजेंटेशन करूं, अब नॉलेज का मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट की नॉलेज, 3 पीस, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान। क्या आप इसके अंदर महारत हासिल कर चुके हो? प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान। प्रोफाइल का मतलब कि आपने कंपनी के बारे में कितने बढ़िया तरीके से उसको गाइड किया कि कंपनी क्या है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी है। अब जब भी किसी को आप प्रेजेंटेशन करने जाओ, मान लो वो शिमला के अंदर प्रेजेंटेशन करने चले जाओ, वहां पर आपने एक विजिटिंग कार्ड निकाला, आपने बंदे को देखा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपने उसको विजिटिंग कार्ड दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमारा यहाँ पर एक ऑफिस ओपन हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, और हमें यहाँ पर के लिए बंदे चाहिए, शिमला के लिए हमने ऑफिस ओपन किया है, बड़ी बड़े शहरों में, शिमला में, मंडी में, हिमाचल के बड़े बड़े शहरों में, कांगड़ा में, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मेन मेन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने इनके शहरों में ऑफिस ओपन किया है। तो हमें यहाँ के लिए एक इंसान चाहिए, एक बंदा चाहिए जो यहाँ हमारे बिजनेस को संभाल सके। हम उसको टीम बना के देंगे और वो उसको हैंडल करेगा। हम उसको एक इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। अब वो बंदे को हमने कुछ गलत तो नहीं बोला, टीम उसको हम उसको बना के देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर एवर की हम देते हैं, कोई जॉब तो नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि यार मेरे को पैसे मिलेंगे इस काम के। बस हमने कार्ड दिया, वो आए, आने के बाद आपने उसको क्या प्रेजेंट किया? दिस इज द मेन थिंग। फर्स्ट इंप्रेशन इज द
लास्ट इंप्रेशन, ये आज से नहीं, हम हजारों साल से, कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। कि आप जब आपके पास इंसान आया या फिर आपके साथ वन टू वन ऑनलाइन में प्रेजेंटेशन में बैठा, वन टू वन ऑफलाइन में प्रेजेंटेशन होती थी, आप वन टू वन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करो उसको। आप स्टार्टिंग के 10 मिनट में उसको ऐसी बातें बोलो कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाने लग जाए। क्या ऐसा क्या बोल सकते हो आप? क्या बोलोगे? क्या चीजें हैं? क्या आपको बोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? कैसे आपको बैठना चाहिए? क्या कपड़े डाल के बैठना चाहिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लगे कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हो मल्टीनेशनल कंपनी की। हम बच्चे बच्चे से लग रहे होते हैं, मासूम से, छोटे छोटे मुंह है हमारे, और हम उनको बोल रहे हैं कि आपको बिजनेस दिखाएंगे, आपको बिजनेस बताते हैं, ऑनलाइन बिजनेस बताता हूँ मैं आपको, मैं ऑनलाइन के अंदर बहुत तगड़ा लीडर हूँ। पर शक्लें हम देख रहे हैं, हम कपड़े डाल के कैसे बैठे हैं, कैसी टी शर्टें डाल के बैठे हैं, क्या हम खोल के बैठे हैं। वैसे आपको दिख जाता है कि आपको पर्सनैलिटी कैसी है, जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो कैसे बैठ के समझा रहा है, क्या बातें समझा रहा है। तो यहाँ पर बड़ी सारी चीजें मैटर करेंगी। आपका ड्रेसअप, आपका दिखना, देन फिर आपका दिखाना क्या, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, ये मैटर करता है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग को क्या है कि उसको इंडिया के अंदर बहुत नेगेटिव वे में बना लिया गया। क्या हुआ कि पहले कंपनियों में यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन है इंडिया के अंदर। अब क्या होता है कि यहाँ पर दो जोड़ो, दो से दो जोड़ो, लाइनें खत्म। जितने लोगों ने आज तक फॉर एवर के अलावा जितनी नकली कंपनियां करी हैं, उनके पैसे ठगे गए हैं, उनके पैसे मर गए हैं। सारों के अंदर एक लाइन होती है, चैन सिस्टम, ये कंपनियां कंपनियां ये होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे होता है किस हिसाब से होता है, ये सारी चीज़ें उनकी मर चुकी हैं। वो सारे क्या बोलते हैं अपने बच्चे को कि ये कंपनी हमने करी है, तो चुप करके जो पढ़ाई करना वो करता रहे, आराम से बैठा रहे, नहीं तो थप्पड़ पड़ेंगे तेरे को। तो ये सारी बड़ी सारी हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब लेकिन जब आपने उसको साथ बैठे, आपने उसके साथ बात करी, भाई यार आज आपको क्या लगता है कि जिंदगी एक मिली है कि दो मिली? मान लो आपने यहाँ पर आज से जॉब शुरू करी, हमारे पास यार ऑप्शंस होती है ना, हम बैठे कॉलेज में भी अपने दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं, यार तेरे को लगता है कि यार पैसा कमा के हमारे सपने पूरे होंगे, हम घर का खाना ही पूरा कर लें वही बहुत है यार? तेरे को लगता है कि यार जॉब में हमारे माँ बाप ने पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने यहाँ पर घर बनाया, हमें पढ़ाया, हमारी फीसें दी, हमारे को स्कूल की फीसें दी पहले, हमारे लिए आरडी कराई, एफडी कराई, हमारे स्कूल की वर्दियों के पैसे दिए, ड्रेस के पैसे दिए, हमारे को क्रैच में पैसे दिए, हमारे को फिर आगे +2 करी, फिर हमारी ट्यूशन होती थी, ट्यूशन्स के पैसे देते थे, फिर हमें कॉलेजों में भर्ती कराया, वहाँ एडमिशन फीसें दी, हमारी बीटेक कराई, सारा कुछ कराया, फिर उसके बाद उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, फिर हमारी शादी कराई, सारा कुछ किया, है ना? तेरे को लगता है हमारे माँ बाप ने सारा कुछ किया और उन्होंने ऐश करी? कितनों के माँ बाप ने ताज में बैठ के चाय पिए, बताओ, सोच के बताओ जो मेरे को सुनते हैं। ताज होटल वर्ल्ड के सबसे बड़े होटल्स में माना जाता है, 5 स्टार। कितनों ने को वहाँ पे कॉफी पी है? कितनों ने वहाँ पे रूम लिए हैं 50-50 हज़ार रुपये एक रात के रेंट के? बताओ, सोच के बताओ। क्यों उन्होंने जाके पेरिस में एंजॉय नहीं किया? क्यों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय नहीं किया यार? ये बता यार, तेरे को क्या लगता है? अब वो बोल रहा है यार, हाँ बात तो है। क्यों? वो अब सारी उम्र उन्होंने पैसा इकट्ठा किया होगा, एंड में एक घर बना दिया बहुत अच्छा सा, जब वो बुजुर्ग हो गए, अब वो पैसों का एंजॉय करेंगे? अब जो पैसे उनको रिटायरमेंट में मिले हैं उससे एंजॉय होगा? वो बुढ़े हो गए, वो कहाँ एंजॉय करेंगे? अब आप बता यार, तो हम बुढ़े हो जाएंगे, हमने पैसे इकट्ठे कर लिए, हमें मालूम है कि मेरे को दूसरी जिंदगी मिली है, मैं इन सारे पैसों को बुजुर्ग होके जो मेरे को 30-40 लाख मिलेंगे, मैं इनको दबाऊंगा, कहीं पे छुपाऊंगा, मैं मरूंगा, अगली जिंदगी में दोबारा आऊंगा, फिर मैं वो पैसे निकालूंगा और मैं एंजॉय करूंगा। ऐसे होता है? कहता है यही एक जिंदगी मिली है, इसी जिंदगी में हमें पैसे कमाने हैं, इसी जवानी के अंदर मेरे को यार BMW मर्सिडीज चलानी है। तो वो तेरे को लगता है कि यार ये जॉब से हमारा पूरा होगा, हम जिस लाइन पे चल रहे हैं पूरा होगा? हमें बिजनेस की गाड़ियां किन के पास होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, BMW और डी, घर नौकर चाकर प्रॉपर्टीज किन के पास होती हैं? जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन के पास होती है ना? अब वो बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं। मेरे पास एक बिजनेस है,
जो बिना पैसे के इन्वेस्टमेंट के बिना बिजनेस है। अब वो वहां पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, बिना पैसे के बिजनेस है भाई। मैं तेरे को जो बिजनेस बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। मैं तेरे को एक कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाऊंगा, रुपया एक नहीं लगेगा। पर यहाँ पर बिजनेस से हम लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। क्या है वो ऐसा? अब वहां पर अगर आपने कंपनी के प्रोफाइल को तगड़े तरीके से क्लियर करा दिया, और वहां पर आपने उसको सही से दिखा दिया कि भाई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब वहां पर आपने बताया कि यार ये एलोवेरा के बारे में तूने सुना है? वो कहता है यार हाँ थोड़ा बहुत सुना है, ऐसे है वैसे है ना, तूने सुना है? तो वहां पर वो क्या बोल रहा है, नहीं सुना, या फिर किसी ने बोला होगा। फिर अब आप उसको बताओ कि भाई हमारे बुजुर्ग दादा दादी कहीं चोट लगते थे, पिंपल्स होते थे, पीक निकलती थी, फोड़े होते थे, या घुटने में दर्द होती थी, पीठ में दर्द होती थी, तो एलोवेरा को बांध लेते थे। ये देख एक फोटो है जो मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में दिखाई थी, जिसके अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट वाली फोटो दिखाई थी। वो रखो अपने पास, वहां पर वो लाइन को रखो अपने पास। वो पढ़ाओ कि देख, ये सिकंदर राजा जिसकी हम किताबों में पढ़ते थे, जो पूरी दुनिया जीतने चला था, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, आज से 3000 साल पहले, उस टाइम से एलोवेरा को कैसे यूज करते थे। उस टाइम ये दवाई यही होती थी, सिर्फ एलोवेरा। वो देख उसने क्या लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड द आइलैंड ऑफ स्कोट्रा इन यमन इन ऑर्डर टू हैव द एलो फॉर हिज फाइटिंग आर्मी। इसका हिंदी में अनुवाद करके बताओ कि सिकंदर राजे ने स्कोट्रा आइलैंड पे एक यमन के अंदर हमला किया, उस सारी लड़ाइयाँ करने से पहले, पूरा दे दुनिया जीतने पे जाने से पहले। देख ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उसने हमला किया उस देश पे, क्यों? उस पे एलो लिखा था, फॉर द एलो, वहां लिखा हुआ है एलोवेरा के लिए स्पेशल लड़ने गया वो। क्यों? क्यों फॉर हिज फाइटिंग आर्मी, ये लाइन क्यों लिखी हुई है? क्यों? क्योंकि वह तब ना पिस्तौल होती थी, ना गोले बारूद होते थे। तब क्या होता था? सिर्फ ये एलोवेरा, तब तब सॉरी, तीर तलवार होते थे। तीर तलवार यहाँ पर कट लग गया, उन पे तीर तलवारों पे सांपों के जहर लगे होते थे, तो एलोवेरा को बांध लेते होते थे, हल्दी हुल्दी लगा के वो सारे जहर को चूस लेता होता था। तो ये एक एलोवेरा है। अब ये हमें लाखों रुपए कैसे कमा के दे सकता है? अब एलोवेरा के अंदर 400-500 किस्में हैं। इसमें 20 मिनरल होते हैं एक पत्ते के अंदर, वहाँ लिखा हुआ पढ़ा हो उसको। 18 अमीनो एसिड और 12 विटामिन होते हैं। अब आपने आयरन लेना है, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, काली पड़ जाती है, वो आयरन मिलता है उससे हमें। अनार में से आयरन मिलता है। कैल्शियम दूध में से मिलता है हमारे को, अमरूद में से मिलता है। विटामिन सी हमें किससे मिलता है? संतरे में से, सिट्रिक एसिड। फिर उसमें आड़ू में से विटामिन ए मिलता है। अलग अलग विटामिन अलग अलग चीज़ों में से मिलते हैं। पोटासियम हमें केले में से मिलता है। हमें ये सारी चीज़ें अलग अलग, संतरा, अमरूद, अनार, ये सेब, पैक्टीन उसमें से मिलेगा। सारी चीज़ें आपने कितनी खाई आज आपने? किसने खाया अनार, किसने खाया सेब, किसने अमरूद, किसने केला, किसने संतरा, किसने चीकू, किसने आड़ू खाया? सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी। एक एलोवेरा के पत्ते के अंदर ये सब कुछ है। सारे मिनरल, 20 मिनरल्स हैं, 18 अमीनो एसिड, 12 विटामिन है। अब ये एलोवेरा को एक कंपनी ने पीने के लिए बना दिया। पीने के लिए क्यों बनाया भाई? कि हम जो खाते पीते हैं, जो भी हमारा आजकल का खाना पीना है, मोमोज, चाप, बर्गर, एक छोटा सा बच्चा है मैगी खानी शुरू करता है, उसके मुंह में दांत नहीं है, वो केला खाता है। वो केले वाला कितना पुराना हमारा एग्जाम्पल है। जब आप उसको दिखाओगे तो वो क्या बोलेगा कि भाई वो केले वाला एग्जाम्पल, भी यार एक केला होता है। अब वो केला हमारे यहाँ पर हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में कैसे पहुंचता है? केरला, महाराष्ट्र से इधर आता है। अब उसको मालगाड़ी में रुकते रुकते स्टेशनों पे धीरे 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 10-15 दिन लग जाते हैं हमारे यहाँ आते आते। और फिर हमारे यहाँ पर हमारे शहरों में रेडी पे पहुँचते पहुँचते 5-10 दिन और लग जाते हैं। 20 दिन में वो हमारे घर पे पहुंचा, और टेबल पे हमने केला रखा, हमारे घर पे शादी है, हम बाहर चले गए, 2-3 दिन बाद वापस आए, वो केले गल गए। वो 20 दिन में क्यों नहीं गले, काले क्यों नहीं पड़े? हमारे घर पे आने के बाद ही 2 दिन के अंदर गल गए, 20 दिन में नहीं गले वो रास्ते में। क्योंकि वो कच्चे होते हैं। रात को एक ऐसी उसको मसाला लगता है, इतना जहरीला मसाला होता है कि 6 घंटे के अंदर उसको पका देता है। सवेरे वो जहरीला केला, छोटे से बच्चे जिसके मुंह में दांत नहीं, अभी वो दूध पीने वाला बच्चा है, उसके उसको केला खिलाता है 6 महीने 8 महीने का, जब वो हो जाता है दूध पी छोड़ता पीना, जब वो 1 साल का, तो जहरीला हो जाता है। उसकी पेट, इतना मुलायम पेट था, उसके अंदर जहर चला गया। फिर वो धीरे धीरे कुरकुरे, चिप्स,
ये सारी चीजें खानी शुरू करता है। फिर वो धीरे धीरे समोसे, छोले भटूरे, ये वो सारे एग्जाम्पल्स आप दो जो आपको, आपके पास आमिर खान की वीडियोस हैं, कोई कोई है, कोई कोई है, वो दिखाई आपने कितना कुछ जहर वो खाता है। अब वो इतना जहर खाते खाते आपको 15-20 साल हो गए, कितनी मैगियां आपने खा ली हैं, कितना कुछ खा लिया। युवराज सिंह क्रिकेटर था, दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर, आईपीएल सॉरी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उसको 2024 के वर्ल्ड कप के लिए। सबसे ज्यादा 3-3 4-4 रन भाग के स्प्रिंटें मारनी, सबसे ज्यादा तगड़ी फील्डिंग, सबसे ज्यादा फिट बॉडी, उसको कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर पता नहीं कहाँ पर क्या चीज फंस गई है, कहाँ पर हमारा वो, फिर कहते हैं हमें ब्लड कैंसर, कोई थ्रोट कैंसर, कोई ब्रेन कैंसर, कोई लीवर कैंसर, रसोली, पथरी, शुगर। आप हॉस्पिटल में जाके देखो, भरे पड़े हॉस्पिटल। हमारे घर में देखो, बच्चे पहले 10, पहले लेडीज 10-10 बच्चे पैदा करती थी। आप अपने दादियां देखो, नानियां देखो, उनकी दादियां देखो, हमारे दाचे ताए 10-10 होंगे। अब पहला बच्चा आप देखो, अपनी बहन या भाभी का पहला बच्चा ही हमारा ऑपरेशन से हुआ होगा। क्यों? क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं, जान ही नहीं। अंदर क्या है? मैगियाँ, कुरकुरे, चिप्स। फिर लेडीज के बच्चेदानी का ऑपरेशन, कोई किडनीज का ऑपरेशन, कोई किसी चीज का, जेंट्स का कोई कैंसर है, कोई किसी चीज का है, ये निकालो जी, वो निकालो। बड़ी सारी प्रॉब्लम है ना। बित्ता तो आम ही निकाल ले जा रहे हैं। तो मतलब कि अंदर से ये एलोवेरा अगर बाहर की हार्ड स्किन में से जहर को चूस सकता है, तो हमारे पेट की स्किन मुलायम है बाहर से कि नहीं? तो सवेरे उठ के जब खाली पेट आप एलोवेरा पिएगे, आधे घंटे बाद जब गर्म पानी पियोगे, तो ये जहर को बाहर निकाल देगा। अब तू ऐसा कर देख, उसको डेमो करके दिखाओ एलोवेरा का। अब उसके बाद उसको बताओ कि भाई देख गूगल पे बेस्ट एलोवेरा कौन बनाता है। वो कहता, देखता है यार, बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड। वहां पर क्या लिखा हुआ था? बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड कौन सा आया? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कौन सा आया? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब इस कंपनी की तेरे को मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर सबसे तगड़ा एलोवेरा फॉर एवर बनाती है। अब वहां पर कंपनी का प्रोफाइल आपने बता दिया कि कंपनी भाई, अब तुम मान ले शिमला पे हम माल रोड पे बैठे हैं, यहाँ पर मान लो शाम माल रोड में एक शोरूम खरीदना है। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, पूरा नीचे से ऊपर तक खेलना, एक फ्लोर नहीं खरीदना। कितने का होगा? कहता जी 10 से 15-20 करोड़ रुपए का। अब मैं कहा चंडीगढ़ में सबसे मेन सेक्टर में आपने खरीदना हो, कितने का होगा? कहता जी 15-20 करोड़ रुपए का। मैं कहा दोनों आपके नाम हो, 20-20 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी आपके नाम हो, कैसा लगेगा? कहता यार सर क्या बातें कर रहा हूँ, मजा ही आ जाएगा। मैं क्या, दो और हूँ, एक इंडिया के अंदर दिल्ली हमारी कैपिटल, और वहां पे सबसे महंगी जगह कनॉट प्लेस, राजेंद्र नगर या कोई भी ऐसी जगह पे आपका वो हो तो। कहता सर क्या बात करो, 50-50 100-100 करोड़ के। मैं क्या आपके नाम हो, कैसा लगेगा? बॉम्बे के अंदर बांद्रा हिल रोड पे आपका हो तो, चार की कैलकुलेशन बताओ, 400 करोड़ रुपए हो गया आपके नाम। 400 करोड़, मुंह से बोल के देखना, 400 करोड़। अब बोलो कि फॉरएवर के 4,000 ऑफिस हैं, 204 ऑफिस नहीं, 40 ऑफिस नहीं, 400 ऑफिस नहीं, ऐसे 4,000 ऑफिस हैं। जो सबसे महंगी जगह पर इंडिया में जो ऑफिस पड़ता है वो बांद्रा हिल रोड पे, वो फॉरएवर का ऑफिस वहां पर है। और पूरे वर्ल्ड में 4,000 ऑफिस हैं फॉरएवर के। सिर्फ ऑफिसों की कीमत गिननी शुरू कर देना, तो आप ये लगा लो, एक एक ऑफिस की 100-100 करोड़ रुपए भी लगा के चलो, तो 4,000 × 100 करोड़ कितने पैसे हो गए? बाहर हो जाएगा सिस्टम कि ठीक है ना। खेतों की कैलकुलेशन बताओ। फिर वहां पर अगर आप होटल की कैलकुलेशन बता दो, फॉर एवर के जो 80 रिजॉर्ट्स थे, एक रिजॉर्ट का एक कमरा कितने रुपए का बनता है? 5 स्टार। वहां पर आप आईपैड से आप देखते हो कि वहां पे एकदम जैसे घंटे बजे आपके आईपैड पे वीडियो आ गई कि कौन आया है। आपने देखा अच्छा बंदा ही है, आपने अलाउ किया तो गेट खुल जाएगा, बैठे बैठे बेड पे ही बटन दबाया, पर्दे खुल जाएंगे। सारा ऑटोमेटेड सिस्टम, जकूजी अंदर लगा, 20-20 लाख का टब। 1 करोड़ रुपए का भी अगर हम कमरा लगाते हैं, तो 1,000 कमरे होते हैं एक 5 स्टार में। तो कितने का हो गया? 1,000 कमरे, 1 करोड़ रुपए के हिसाब से 1,000 करोड़ रुपए का एक होटल हो गया। अभी जमीन की रेट नहीं मैंने लगाया, नीचे जो स्विमिंग पूल बने हैं, जो रेस्टोरेंट्स बने हैं, उनका रेट नहीं लगाया। अगर मैं 1,000 करोड़ भी लगाता हूँ, 1,000-1,200 करोड़ रुपए भी लगाता हूँ, तो 80 रिजॉर्ट्स कितने हो गए? 80,000 करोड़ के, 1 लाख करोड़ रुपए के तो सिर्फ होटल होटल थे फॉरएवर के। क्या बातें करते हैं हम। सिर्फ क्या है,
फॉरएवर INC 500 की लिस्टिंग के अंदर 5th रैंक पर आई हुई है। अब यहाँ पर हिमाचल हिमाचल में हजारों लाखों कंपनियां हैं, करोड़ों कंपनियां पूरे इंडिया में हैं, अरबों कंपनियां पूरे वर्ल्ड में हैं। INC में, इंटरनेशनल कंपनीज की लिस्टिंग में, दुनिया में 6th रैंक पर आना अरबों कंपनियों में से। क्यों? क्योंकि हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि फॉरएवर शेयर मार्केट के अंदर नहीं है। समझ में आई? ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जब उसको आपको तगड़े तरीके से उसको प्रोफाइल आप क्रिएट कराओगे, तो अब बताओ कि बंदा क्या बोलेगा। अब बंदा बोलेगा यार मैं क्या इस कंपनी की तेरे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैं फ्री में दिला रहा हूँ। अब तो ये बताइए, जो एलोवेरा है, 20 साल से तूने कितनी बार पी लिया, सॉरी, कितनी बार कितना जहर खा लिया तूने आज तक? कितनी बार बस स्टैंड पे खड़े होके तूने पानी पिया, जूस पिया, वो सारा कुछ किया। वो पानी की बोतल वाला एग्जांपल जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था आपको, जो वो एग्जांपल आपने दिया उसको, तो कैसे क्या बोलेगा वो बंदा क्या बोलेगा? हिल जाएगा। यार मेरे अंदर तो पता नहीं कितना की जहर मैंने आज तक खा लिया, 20 साल में कितने समोसे खा लिए हैं, कितने परोंठे खा लिए हैं तेल में तले हुए। जैसे ही तेल तवे पे टच हुआ, ट्रांसफैट बन गया उसका, जो बॉडी के खून में मिल गया जाके, जो नसों में चिपक गया जाके, लीवर पे उसने वो डाल दिया सारा कुछ जाके, घेरा डाल लिया। खाना खाया, पानी पीते ही यहाँ पर से हमारे अंदर जो एसिड बाइल जूसेस निकलते हैं, जो आग बलती है वो सारी बुझा देते हैं। खाना खाते ही पानी पीने से जहर बन जाता है, वो सारा पेट में जाके हमारे जैसे कीचड़ होता है बरसातों में, वैसा पे पानी रोटी वैसे हमारे अंदर चली जाती है। वो दांतों का एग्जाम्पल दो, दांत में ब्रश जो हम करते हैं, अगर हम 20 दिन ब्रश ना करें तो हम दांतों का क्या हाल होगा। रोटी सिर्फ 10 मिनट खाते हैं दांतों से हम, सवेरे दोपहर शाम को 10-10 मिनट उनको साफ करना पड़ता है। रोटी अंदर कितनी देर है कोई लंबा सा ब्रश पे अंदर डाल रहे हैं, ये अंदर की सफाई कर रहे हैं, अंदर तो जहर भरा पड़ा है। एलोवेरा की जरूरत, लगता है मम्मी पापा ने 50-50 साल हो गए उनको, उनके पेट में कितना जहर भरा होगा। वो पानी के टैंक वाला एग्जाम्पल दो आप उसको। भाई पानी का टैंक होता है, 20 साल से आप उसको साफ ना करें तो क्या होगा, उसमें काई जम जाएगी। फिर ऊपर जो मोटर होती है, वो पानी का टैंक पेट है, मोटर हमारा उसके ऊपर बटन दबाते हैं, वो पानी खींच के टैंकी में चढ़ा देती है। वो मोटर हमारा दिल है, ये टैंकी है, ये नलके हैं। जिस दिन नलका रुक गया, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर, पानी के टैंक में तो काई जमी है, मोटर काई खींच रही है, काई सिर में जा रही है, काई नलके में निकल रही है। जिस दिन जाम हो गया नलका, मतलब मुंह टेढ़ा हो गया, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? पैरालिसिस। वो बीमारी शुरू कहाँ से हुई? पेट से। पेट के अंदर जब 40-40 साल से मम्मी पापा के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। लगता है कि एलोवेरा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा कौन सा है? फॉरएवर का। अब बता, तेरे पड़ोसी के मम्मी पापा सफाई करते हैं पेट की डेली? उन्होंने पानी के टैंक को साफ करा 10 साल में कि एक बार भी 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में भी 2 साल में सफाई करी होगी? हमारे पूरे गांव के लोग पेट की सफाई कर रहे हैं, पानी के टैंक की सफाई कर रहे हैं 6 महीने बाद या साल के बाद? नहीं कर रहे। पूरे स्टेट के लोग पेट सफाई कर रहे हैं, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। छोले भटूरे, कोई मोमोज, कोई चाप कोई खा रहा है, कोई चिकन खा रहा है, कोई मटन खा रहा है। अंदर जहर पड़ा हुआ है, सवेरे उठ के खाली पेट एलोवेरा पीना चाहिए। कहता हाँ यार। और मैं कहा, किसी के फॉरएवर की कोई इसकी दुकान नहीं है, ना ही फॉरएवर की कोई ऐड है, तूने सुना कभी? कहता नहीं। मैं कहा पूरे हिमाचल में कहीं इसकी दुकान नहीं है, मैं तेरे को इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला रहा हूँ यहाँ पे। वो कहता दुकान खोलनी है। मैं कहा नहीं, मोबाइल पे खुल जाएगी, एलो स्टोर होता है, तू आधार कार्ड पैन कार्ड देगा, मैं तेरी इसके डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा दूंगा। फॉरएवर ने तो बेच ही नहीं रही, अगर उसने बेचना होता तो दुकान खोल ली होती, एडवर्टाइजमेंट करी होती। पूरे हिमाचल में कहीं पे भी इसकी दुकान नहीं है। बस करना क्या है तूने, क्या करना है? इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। अब आता है मार्केटिंग प्लान। फिर मार्केटिंग प्लान आपने प्रॉपर वे से उसको गाइड किया। अब समझने वाली बात क्या है, कि आपने उसको 1-1.5 घंटा लगा के उसको, अपने स्टार्टिंग के 10 मिनट में वो सिर्फ देखने आया था क्या है, आपने 10 मिनट में क्या जादू किया कि वो 1-1.5 घंटा आपके पास बैठ के गया। मेरे पास आते थे, सर जल्दी बताओ क्या है। मैं कहा नहीं सुनना, जा, मेरे पास तो बहुत तगड़ी चीज़ है, मैं तेरे को फ्री के अंदर ऐसे ऐसे, मैं बड़ी सारी बातें बोलता था। फिर उसको पहले 10-15 मिनट में ऐसा उसकी कैलकुलेशन की, एजुकेशन की कैलकुलेशन, ये वो ऐसी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि वो बंदा पागल हो जाता है। फिर कहता बताओ 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 बताओ, फिर एलोवेरा बताता हूँ, फिर ये, फिर बी पॉलन, फिर ये वो सारा कुछ मैं बताता हूँ, और बंदा ज्वाइन हो जाता है। अगर मैंने कोई सेमिनार किया 1000 लोगों का, तो अगर बंदा लास्ट तक बैठा है, तो ये नहीं कि वो 999 लोग ज्वाइन होंगे, 1000 के 1000 बंदे ज्वाइन होंगे। ऐसा सिस्टम है। अब समझने वाली बात आपको लगेगा कि मैं आपको एक मोटी सी बात बता देता हूँ, कि
अगर आप मेरे को कहो कि सर आपने अपना चेक नहीं दिखाना, आपने ये नहीं बताना कि आप टीम फायर के लीडर हो, बहुत बड़े आदमी हो, गाड़ियां हैं, कुछ है, आप मेरे को अपने साथ अपने गांव में लेकर चलो और वहां पर बोलो 3-4 लड़कों को इकट्ठे करो, बोलो चाय पे आओ, एक बंदा आया बहुत तगड़ा, वो आपको गाइड करेगा सेहत के बारे में और हमारे करियर के बारे में, पैसे नहीं लेगा, फ्री में गाइड करेगा। अब वहां पर आपने कुछ नहीं बताना कि ये कितना बड़ा आदमी है, अगला टांगों पे टांग रख के बैठे होंगे, उनको क्या पता अरविंद कौन है, आपने बिल्कुल नहीं उसके आगे मेरी हाइप क्रिएट करनी। वहां जाके बैठूंगा और 4 के 4 बंदों को ज्वाइन कराऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा कि मेरे बच्चा ये है वो है, कैसे कैसे ज्वाइन कराऊंगा मैं भाई, मेरी नॉलेज की वजह से। आपके बंदा एएस कर गया, आपके साथ बंदे ने फॉर्म फिल कर दिया, वो क्यों नहीं चला, क्या रीजन है, क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज में कमी है। आज मैं आपको पूछूं कि बी पॉलन क्या होता है, बताओ क्या होता है, किसी को पता है जी बी पॉलन क्या होता है? पुराने लोगों को छोड़ के, जिन्होंने अभी 2-2 4-4 महीने 6-6 महीने हो गए हैं या 1-1 साल हो गया, बताओ बी पॉलन क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी, क्या होता है आपको बी पॉलन, बताओ जी। 90% लोगों को आपको पता नहीं होगा कि बी पॉलन क्या है। पॉलन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कहते हैं मधुमक्खी, आप यूट्यूब पे चेक करना, मधुमक्खियां अगर इस धरती पे से खत्म हो जाएं तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। वो क्या काम करती है? मेटिंग का काम करती है। आपके एक फूल पे बैठी दूसरे फूल पे, प्यारे प्यारे फूल है, उनका नेक्टर चूस के लाती है और छत्ते में डालती है, तभी हनी को नेक्टर बोला गया है। वैद्यों के पास सारी बड़ी बड़ी कंपनियां शहद बना के बेच रही हैं, शहद में कुछ तो होता होगा, कभी शहद को आज के जमाने के लड़के खाते ही नहीं है, लड़कियां खाती नहीं है। अंदर से लीवर किडनी सबकी सफाई करता है शहद। नींबू के साथ गर्म पानी में पी के देखो, सारा गंद बाहर निकाल देगा। उसको दही में खा के देखो, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेट कर देगा। उसके अंदर दाल चीनी मिला के या फिर उसके अंदर काली मिर्च मिला के अदरक का पेस्ट निकाल के देखो, गला बिल्कुल सेट करके रखेगा। आंखों में डालते थे लोग, पता नहीं क्या क्या शहदों के साथ, पता नहीं क्या क्या होता है। आपने कभी इसको यूट्यूब पे पढ़ो, और दुनिया का नंबर 1 शहद फॉरएवर बनाती है। अब उसके अंदर भी पॉलन क्या है? शहद का भी पापा। मक्खियां फूलों पे बैठती है, उस पर एक पाउडर सा होता है, वो पाउडर से वो बैठ के आती हैं फूलों पे, घूम फिर के आती हैं बाहर से, जब छत्ते पे बैठने लगती हैं, वो पोलन उसके पैरों पे लगे होते हैं, वो पाउडर लगा होता है, वो झाड़ती हैं बैठने से पहले। कंपनी ने नीचे थाल रखे हुए हैं पोलन पित्तल के, वो सारे उसके अंदर वो पाउडर गिरता है जिसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, उसके अंदर शहद मिला रखा है। आपके सारे कहते हैं 2 टैबलेट्स भी अगर हम दिन में सवेरे चूस लें, हमें सारा दिन खाना खाने की जरूरत नहीं, इतना विटामिन मिनरल आयरन हमें मिल जाता है, हमारी बॉडी पूरी स्ट्रांग रहती है सारा दिन। पर लेकिन यहाँ पर हमने बंदे को समझाया कि पोलन ऐसा होता है, बंदा हिल जाता है, अच्छा पोलन ऐसा होता है और फॉरएवर ऐसे बनाती है। आपने उसका टेक्निकल बात बताई कि फ्रीडम के अंदर ग्लूकोसामिल सल्फेट होता है, कुंड्राइटिन सल्फेट होता है, एमएसएम होता है। मैं तो बंदे को बोलता हूँ सर यहाँ पर 2 सीसी करने पड़ते हैं, मैंने एक ट्रेनिंग देखी थी, मैं कुछ नहीं करना पड़ता। सर क्या, प्रोडक्ट लेना पड़ता है, मैंने सुना। मैं कहा कोई नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, मैंने नहीं तेरा 1 रुपया भी लगवाना भाई, तू बस ट्रेनिंग लगा आराम से। मैं तेरे को आज 4 प्रोडक्ट की नॉलेज लिख के भेज रहा हूँ, सॉरी सुन बोल के भेज रहा हूँ, इसको लिख के सुन के इसके बारे में खुद पढ़ के प्रोडक्ट कैटलॉग भेज रहा हूँ, पढ़ के मेरे को वो बता बस। मैंने तेरे को फ्री के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला दी, और एवर इसको बेचती नहीं, ना इसकी एडवर्टाइजमेंट है, ना ही इसकी कहीं दुकान है। कैसे काम करना वो मैं बताऊंगा, तूने क्या करना है, उसके पीछे छोड़ दे, तू कैसे करना है, तो अपनी वाई क्लियर करके क्यों करना है। जॉब से कुछ बनेगा? नहीं बनेगा ना। बिजनेस में ऐसे होगा, ये देख ये देख, ये ओंकार को देख, ये गुरिंदर को देख, इन्होंने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा लिए हैं, 50-60 60 लाख की गाड़ियां चला रहे हैं। है हमारे गांव में भी रेंज रोवर, हमारे गांव में BMW? नहीं ना। ये देख चला रहे हैं, इन्होंने 20-22 साल की उम्र में ले ली थी। रखो, तो उसके टेंशन दे के रखो, कैसे क्या है क्या, कुछ नहीं है, बस तो अभी ट्रेनिंग लगा भाई, नॉलेज ले अभी। मैं बंदे को नॉलेज 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 देता हूँ, वो खुद ही नोट्स बनाने लगा था, अच्छा ये फ्रीडम है, ये एक्टिव एच है, इसमें हिलोनिक एसिड है, इसमें हल्दी है, ये जॉइंट्स के लिए, ये फेस पे ग्लो के लिए हिलोनिक एसिड, जॉइंट्स के अंदर जो कुशन होता है उसके लिए नंबर 1 चीज़ है, ये मेरे को दादी को देना, उनके जॉइंट्स में ये देना। ये फ्रीडम ग्लूकोसम सल्फेट है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, एमएसएम है,
जॉइंट्स के लिए ये चीज़ें हमें, ये कॉम्बो मेरे को दादी को देना है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हार्टी प्लस, ये आर्टिक्सी गार्लिक थाइम, लहसुन और अजवाइन का कॉम्बिनेशन है, ये ऐसे ऐसे इसको ले उसके लिए देना। वो क्या करता है, खून साफ करता है, खून को गाढ़ा होने से बचाता है, सारा कुछ है। तो मेरे मम्मी पापा को पता नहीं खून कितना गाढ़ा रखा, कितना मीट खाया, कितना पनीर खाया, कितने समोसे खाए हैं, तेल हमारे तो खून के अंदर मिक्स हो चुका है। तो इनको ही देना। ये सुना ना आपने, चंगा भला सुत्ता सी सवेरे उठिया ही नहीं। तो वो बीमारियां सारी हमें लगी हुई हैं, हमारी नसों को हमें खोल के रखने के लिए आरजी प्लस, आर्टिक्सी गार्लिक थाइम हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये हमें दिमाग को भी खोल के रखती है सारी चीजें। तो ये हमारे, वो अपने आप ही लिस्ट बना रहा है। तो क्या आपके पास ये नॉलेज है? आपने ये नॉलेज ली? लोग कहते हैं सर हमने ज्वाइन किया जी, काम क्या चला हुआ है, लीड्स लो, खरीदो, सारा कुछ करो, 2-3 दिन के अंदर ऐसा करो, उसके इस कराने की प्लानिंग दे दो, बस उसका सीसी करा दो। मैं अपने बंदों को, जितने भी आप ये लीडर सुन रहे हैं, इनको मैंने 50-50 ट्रेनिंगें लगवाई हुई हैं, प्रोडक्ट की 10-10 बार लगवाई हुई हैं। मैं अपने बंदे को स्ट्रांग बनाता हूँ। आप क्या चाहते हो कि एक बंदे के बाद एस कराया और उसके बाद छोड़ दिया? तो छोड़ ही देगा। आप उसको नॉलेज, आपको ही नॉलेज नहीं तो आगे क्या नॉलेज दोगे? आपको कौन सी ट्रेनिंग दिखानी चाहिए उसको? आग ही आग है, द सीक्रेट दिखानी चाहिए आपको उसको। और बड़ी सारी वीडियोस हैं, और आपको बुक्स पर 21st सेंचुरी बुक पढ़ानी चाहिए। जुड़ो जोड़ो जीतो लोक व्यवहार, ये बुक पढ़ाओ, ताकि वो स्ट्रांग बने। आजकल चले में फास्ट, बिजनेस डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा और सारी जिंदगी पैसे खाओगे और बहुत स्पीड से जाओगे। अभी आपको लग रहा है 1 महीने से कुछ नहीं हुआ, पर 1 महीने के बाद स्ट्रांग बंदा तैयार करके आप ही उसकी पीपीटियां कर रहे हो। आप क्या चाहते हो कि ये बंदा ज्वाइन हो गया, इस बंदे को ज्वाइन करा के इस बंदे को स्ट्रांग बनाना है, ताकि खुद ही प्रेजेंटेशन करे। इसको सब कुछ सिखा दूंगा। अब मैं ही उसकी पीपीटियां कर रहा हूँ, मैं ही उसके सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर लूंगा सीबी? अभी आपने देखा, मैंने एक वीडियो चलाई दो स्टार्टिंग में। पहली वीडियो में क्या बोला गया, यूके का ट्रिप आ रहा है, लंदन का ट्रिप आ रहा है, अब हम अगले साल लंदन जाएंगे। अभी हम हवाई में हैं। हमारे पार्टनर, हमारे सीनियर मनदीप सर ने ये लाइन बोली, ये आके वीडियो दिखाई, देखो मैं हवाई में था, मैंने अब लंदन का अगले ट्रिप है, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं पागल हो गया, मेरे को भी लंदन जाना है। तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं ही अगर सारी टीम का काम करता रहूंगा तो मैं तो कभी लंदन जा ही नहीं पाऊंगा। फॉर एवर को बोलते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज टाइम मल्टीप्लीकेशन? टाइम मल्टीप्लीकेशन क्या है? अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। वो 80,000 घंटे वाला एग्जाम्पल हम जो देते हैं कि भाई एक आदमी नौकरी करता है, दिन में 8 घंटे नौकरी करता है, महीने में, हफ्ते में उसकी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, और वो सरकारी जॉब में, किसी भी जॉब में है, 8-15 40 40 घंटे वो हफ्ते के अंदर काम करता है। 50 हफ्ते काम करता है, कितने घंटे काम हो गए पूरे साल में? 50 × 40, 1,000 घंटे। अब वो सारी उम्र में कितने घंटे काम करेगा? अब आप लगा लो। उतना एक कंपनी एक दिन में कर देती है। उसने 1,000 लोग रखे हुए हैं, वो 8-8 घंटे काम करते हैं, 8,000 घंटे एक दिन में काम कर देते हैं, जितना वो एक सारी उम्र में काम करता है, 80,000 घंटे। तो आप ये चीज सोचो कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी फॉर एवर में आके, आप फ्री कब होगे कि आपने ये करना है, वो करना है, सारे चीजें सेट करनी है। हम क्या फंसे हुए हैं, बस एएस करना है जी, सुपरवाइजर करना है जी। तो मेरे को यार 2 सीसी करने हैं, मेरे को उसके 2 सीसी कराने हैं, मेरे को 4 सीसी का टारगेट मिला, 4 सीसी करने हैं। मेरे को 6 सीसी करने हैं, मेरे को 25 सीसी करने हैं, मेरे को एएम करना है, मेरे को मैनेजर करना है। व्हाट इज मैनेजर मनूजर यार? क्या करना है मैनेजर मनूजर? सीबी सुना आपने? सीबी एक नाम की चीज होती है। एक वही चीज होती है जिससे हम करोड़पति लखपति बन सकते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मेरी एक लीडर से बात हो रही थी। वो कहता सर पैसे कमा लिए, सारा कुछ हो गया, क्या करेंगे अब आगे? मैं क्या भाई कि मतलब? कहता सर अब गाड़ियां ले ली, सब कुछ ले लिया, अब आगे क्या करेंगे? मैं क्या मतलब? आगे क्या करेंगे मतलब? मैं क्या यार? कहता सर सारा कुछ ठीक है, बच्चे हो गए, सारा फैमिली होगी, सारा कुछ ठीक हो गया। मैं क्या, मेरी समझ में नहीं आ रही, बोलना क्या चाह रहे हो आप? कहता सर बस वो क्या गाड़ियां सब कुछ। मैं क्या भाई मेरी बात एक ध्यान से सुनो, कि मैं क्या यहीं पे सारा गाड़ियां गुड़ियां ले ली, सब कुछ हो गया, घर गुर बन गए, सब कुछ ठीक है। मैं क्या तूने चंडीगढ़ में घर नहीं डालना? कहता सर क्या करना है, अपने यहीं पे घर कोठी डली, सारा कुछ ठीक है।
मैं कहा भाई इंडिया का सबसे सुंदर शहर है, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। वहाँ पर एक सेक्टर के अंदर दो दो बड़े बड़े पार्क है, 1 1 किलोमीटर के, 2 2 किलोमीटर के। सबसे ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, बच्चे की ग्रोथ होती है यहाँ पर। बच्चा जज के बेटा, आपके पड़ोसी, आपको नहीं पता, जज है, आईएएस है, आईपीएस है, उसके साथ वो बैठ रहा है, उसके साथ वो बड़ा बन रहा है। एक हमारे गांव में हम जहाँ रह रहे हैं, कोठी डली हुई है, अच्छी बड़ी तगड़ी कोठी डाल ली है, और वहीं पे वो स्कूल में जा रहा है, आसपास के स्कूल में जा रहा है, बड़े स्कूल में जा रहा है, महंगे स्कूल में जा रहा है। पर वहां पर बच्चे भी तो दूसरे जिम्मेदार करोड़ोंपति के आ रहे, पतियों के आ रहे हैं। पर वो क्या बोल रहे हो, कितने जा रहे हैं, क्या कर रहे हो ओए, चल चलिए अपा करिए। और एक तरफ बच्चे बोल रहे हैं, सर ब्रो चलो चले, हम यहाँ पर यार अकेडमी ज्वाइन करते हैं क्रिकेट की, ये करते हैं वो करते हैं। इंटेलेक्चुअल सिस्टम, उसका बच्चे का माइंड बहुत बढ़ता है, ऐसे होता है। अब यहाँ पर घर लेना भाई, 5 10 करोड़ रुपए का घर है, 12 करोड़ रुपए का घर है स्टेम कनाल की कोठी का। अब वो नहीं खरीदनी क्या 12 करोड़ रुपए की? अब हमारे सीनियर का, मनदीप सर का, जो प्लाट प्लाट है, जो घर का प्लाट आप लेने जाओ, 500 गज का प्लॉट है उनका, 4 करोड़ रुपए का प्लॉट प्लॉट है इस टाइम पे। ऊपर उन्होंने 3 4 करोड़ रुपए घर पे लगा रखा है, 8 करोड़ रुपया ऑफिस पे, 2 3 करोड़ रुपए लगा रखा है, 11 करोड़ रुपए की तो चीज ले ली। अब नकली कंपनियों के नकली, सॉरी, नकली टीमों के लिए जो आज का फॉर एवर के अंदर ही हम सबसे बड़े हैं, रोल्स रॉयस लेने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने उनको देखा है? दोस्तों समझने वाली बात है कि वो लोग तो, अभी आपको क्या ही बताऊं, पर्सनली मेरे को मिलना, वो मेरे को मैसेज क्या क्या करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि सर ट्रेनिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। दोस्तों ये कुछ नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको डिसीजन लेना है मेन, कि आपको डॉग बनना है कि आपको बिल्ली बनना है, कैट, कुत्ता बनना है। देखो जिंदगी में आते हैं ना, कुत्ते का बच्चा पैदा होता है, मरते हुए देखा उसको, भूख से कहीं ना कहीं से रोटी मिल जाती है। हम रोटी खाने आए हैं? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम यहाँ पर, हमें इंसान बना के भेजा भगवान ने, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं। कोई समुंदर बने हुए हैं, कोई पहाड़ बने हुए हैं, कोई बर्फ पड़ रही है, स्नो गिर रही है, कोई कहीं कोई जेट्स की है, कोई कुछ है। हमने लोगों का भला करना है, उनके लिए पैसा कमा के हम कोई शेड डाल रहे हैं, गायें घूम रही है, गायें को गौशाला बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए बना के हम सारे बड़े बड़े मैनेजर्स हो जाएंगे, लाख 15 20 हजार मैनेजर हो जाएंगे। महीने का 1000 1000 रुपये भी इकट्ठा करेंगे, 15 20 हजार मैनेजर, महीने का कितना पैसा इकट्ठा हो गया, हम कितने सारे अच्छे अच्छे चीज काम कर सकते हैं। पर लेकिन हम करें क्यों? मैं अब आपके ड्रीम जगाऊं भाई, यार ये होता है वो होता है। यहाँ ड्रीम जगाने के लिए मेरे को तो हंसी आती है कि यार बंदों के मैं ड्रीम जगा रहा हूँ। ड्रीम किस लिए जगाने हैं यार? आपके अंदर, खुद के अंदर ड्रीम नहीं है क्या, कि मेरे को कुछ करना है जिंदगी में, कुछ नहीं करना, मैं आया हूँ एक ही जिंदगी मिली है, मेरे को ऐश लेनी है, करना है मेरे को यार। अभी मैं कल परसों किसी एक लीडर के साथ बैठा, कहता सर दुबई के अंदर घर बनाना है बस अब तो, पाम जुमेरा पे, वो पेड़ होता है ना जिसकी शाखाएं ऐसे फैली होती हैं, पाम ट्री जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे बना हुआ है। दुबई के अंदर एक कॉलोनी बनी हुई है, ऐसे फैले हैं उसके ऐसे पेड़ के रूप में उसको, कॉलोनी को बनाया हुआ है, ऐसे सीधा, फिर रोड, फिर इधर को 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 रोड, ऐसे रोड है उस पे, बने हुए बड़े तगड़े तगड़े घर, और बाहर निकलते ही समुंदर है, समुंदर के बीच में बने हुए हैं वो। अब वहां पर आप 5 10 करोड़ रुपए का फ्लैट लोगे, कैसा लगेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? यार वहां पर आप अंदर से रेंज रोवर निकाल रहे हो अपने घर से बाहर, सोच के देखना, जहां आप रहते हो आपकी कॉलोनी में, आपके वहां फॉर्च्यूनर आप निकाल रहे हो, रेंज रोवर बाहर निकाल रहे हो, पड़ोसी देख रहे हैं, कर रहे हैं। अभी आप पेरिस जा रहे हो, आपके जो दोस्त थे स्कूल के, वो वहीं नौकरियां कर रहे हैं, वो वहीं पे लगे हुए हैं। वो सारी चीजें कैसे पूरी होंगी दोस्तों, ये सारी चीजें एक तगड़ा डिसीजन लेके। मेन थिंग इज दिस, कि डिसीजन, डिसीजन लेके आपने नॉलेज ली कि नहीं ली। आप, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है जिसमें मैं बैठा हूँ, अब आपके इसके नीचे जो नींव है, वो नींव स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसके अंदर सीमेंट डालना है, बजरी डालनी है, रेता डालना है, सरिया डालना है, आपने 5 पिलर खड़े करने हैं, सोरिंग मैनेजर बनना है, सीबी करना है। अब सीबी क्या होता है? आपने आज 120 सीसी करने, मैनेजर बनता है। अब कभी आप किसी के 25 सीसी हो रहे हैं, 25 सीसी हो रहे हैं, अगले महीने 15 हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं, अगले महीने 25 हो रहे हैं, अगले महीने 50 हो गए, फिर उससे अगले महीने 35 रह गए, उससे अगले महीने 70 हो गए, फिर 50 रह गए,
टोटल हो गया 120 सीसी। ऐसे करते करते 250-300 सीसी करके एक आदमी मैनेजर बनता है। अब क्या हुआ, आप हो, आपके नीचे उस बंदे ने 250-300 सीसी करे, वो मैनेजर बना, है ना। आप तो मैनेजर बन गए, आप पहले इस साल में मैनेजर बन गए, दिसंबर तक आपके साथ एक बंदा और मैनेजर बन गया। अब अगले साल क्या हुआ, अगर वो 60 सीसी की भी एवरेज रखता है तो 12 पंजे कितना हुआ, 12 6 दा 72, 700 सीसी उस मैनेजर ने अपनी टीम के साथ मिलके किए। उसने पैसे भी कमाए, सारा कुछ किया। आपने भी साइड से 700 सीसी कर दी। 600 सीसी भी अगर एक मैनेजर आपको लाइन मिलती है, आपके नीचे मैनेजर है, और जो मैनेजर नहीं है आपके नीचे, आप मैनेजर हो, आपके नीचे एक मैनेजर है, दूसरे लोग मैनेजर नहीं है, उनको नॉन मैनेजर बोलते हैं। वो नॉन मैनेजर लोगों ने, आपने उनसे 60-60 की एवरेज से, आपके उनसे 700 सीसी हो गया, आपका सीबी लेवल 1 हो गया। जो मेरे को 17 लाख रुपए मिला था, सबसे बड़ा सीबी था लेवल 1 में। लेवल 2 में क्या होगा, आपका जो मैनेजर था उसने भी लेवल 1 कर दिया, उसके नीचे भी एक मैनेजर था, उसके नीचे दूसरे जो नॉन मैनेजर थे, उसने प्लानिंग करी, उसने भी लेवल 1 कर दिया। दूसरे आदमी ने भी आपके नीचे एक और मैनेजर आप बना दिया, आपने तीसरा बना दिया। तो 2026 में आपने 3 मैनेजर लाइनों को आपने लेवल 1 करवा दिया। आपका लेवल 2 में हो जाएगा, जो मनदीप सर को 84 लैक्स मिला था, 96 लैक्स मिला, 97 लाख मिला था। 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया, 2 महीने की इनकम 10-10 लाख रुपया। अब 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ सीबीसीबी का हो गया 2 साल में, और 10-10 लाख रुपए, 2 करोड़ 40 लाख रुपए महीने का वर्थ लगा लो, 4.5 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा कर लिया। क्या हम ये इसमें फंसे हुए हैं? 10,000 का चेक, 6,000 का चेक, 2 सीसी, 25 सीसी, व्हाट इज दिस, सीबी करना है। 6 लोग आपने मैनेजर बना दिए, उन 6 लोगों को आपने लेवल 1 करवा दिया, सीबी लेवल 3 हो गया, जो 3 से 4 करोड़ रुपया होगा। हम यहाँ पर एएस करने या फिर ये मैनेजर करने नहीं आए, हम वो 4-4 5-5 करोड़ रुपए कमाने आए हैं, जो एक ही चेक में मिलेगा। और ये तो लैब बीच के वो हैं, एएस सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, व्हाट इज दिस, नथिंग यार। क्या है, सीसी सूसी में फंसे हुए हो? कुछ नहीं है। अपने आप की नॉलेज इतनी बढ़ा दो कि आपके पास एक बंदा है, उसको बजरी सीमेंट सारा कुछ है, खर्चा भी हो रहा है उसके ऊपर, दिल्ली लेके जाना पड़ता है कई बार सक्सेस डे में, कई बार इधर आना होता है, प्रोजेक्टर लेना है, 15-20 लोग आपके गांव में इकट्ठे किए, मीटिंग कर रहे हो, वो कुर्सी रख के उस पर लैपटॉप लग के समझा रहे हैं, बंदे कह रहे दिख रहा है, दिख रहा है, बंदे को हाँ वो दिख रहा है, दिख कुछ नहीं रहा, प्रोजेक्टर लेना पड़ता है। सारा कुछ किया हमने, मैंने सारा कुछ किया, ऑनलाइन में मैंने सारा कुछ किया, लीड्स खरीदो, सारा कुछ करो, किस तरीके से करना है, किस हिसाब से करना है। और उसको अपने पास यहाँ पर एक 10,000 रुपये रेंट पे एक घर लो, उसको अपने पास बुलाओ, उसको बोलो, एक को, दो को, आपको भोपाल से बंदा मिला, आपको मध्य प्रदेश से बंदा मिला, आपको मुंबई से बंदा मिला, तमिलनाडु से बंदा मिला, आप उसको अपने पास बुला लो, यहाँ पर रखो उनको फ्लैट में, उनको 1 महीना ट्रेंड करो आप उनको। हम यहाँ पर सोचते हैं फ्री के अंदर मैनेजर बन जाए। एक गन्ने के रस की रेडी भी खोलते हैं ना, तो जनरेटर जनरेटर पहले 50-60 हजार का, वो तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग जाता है। मैंने जब मैनेजर बना था, मैंने 5 लाख तक का सोचा था, 5 लाख भी लग गया ना मैनेजर बनते बनते, तो कोई चक्कर नहीं है, 2-4 चक्कों में पूरे कर दूंगा मैं। कभी दोस्त से पकड़ लेने पैसे, कहीं से पकड़ लेने, कहीं कुछ कर लेना, कहीं कहीं कुछ कर लेना। आपको फॉरएवर के ऊपर भरोसा है अगर, आपको अपने ऊपर भरोसा है अगर, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा है अगर, तो आप क्यों पीछे हटोगे? हम चक्कर के हम बने हुए हैं कुत्ते, डॉग, कभी आगे कभी पीछे, यार ये भी बीकॉम की भी कर लूं पूरा, बीए भी कर लूं पूरा, यार ये जॉब भी ना छोड़ूं, ऐसे करूं वैसे करूं, बिल्ली की तरह एक डिसीजन। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, पर लेकिन दोस्तों असली बात यह है कि अगर मैं डिसीजन ले लूं, फॉर एवर के ऊपर आ जाऊं, तो मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी चेंज कर लूंगा। एक ही काम के ऊपर फोकस करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब रहा कुछ ये हो जाएगा। गुरुद्वारों में भी सोया हूं मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप कहीं सोचते हो ना ऐसे ही लोग बन जाते हैं, मैं उनकी किस्मत अच्छी होती है, ऐसे नहीं होती है किस्मत अच्छी दोस्तों। उन्होंने बड़े सारे स्ट्रगल किए हैं। शाहरुख खान फुटपाथ पे सोया, आप कोई फुटपाथ पे तो नहीं सो रहे हो कोई यहाँ पर बैठे हुए। टेस्ला का मालिक 18-18 घंटे काम करता है, आप अभी मीटिंग लगाओगे, सो जाओगे, अभी सो जाओगे आप मीटिंग के अंदर, मीटिंग खत्म होते ही आपको यहाँ बैठे बैठे दुख लग रहा होगा। राजा बेटा हो ना अब। हेलो, एक मिनट,
पहले आप एक वीडियो देखो, राजा बेटा हो ना अभी आप थक जाओगे। मदर्स डे अभी, हेलो मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। उन मम्मी को मदर्स डे गिफ्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, और मम्मी को कह रहे हैं मम्मी 500 रुपये देना, केक लेके आना मदर डे का। मम्मी 500 रुपये देना, हैप्पी मदर्स डे बोला और मम्मी से पैसे ले रहे। किसी ने मम्मी को आज ज्वेलरी गिफ्ट करी? किसी ने किए इयरिंग्स या गले का हार गिफ्ट किया? नहीं किया। क्यों? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर सिर्फ घर वालों के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। राजा बापू मुलायम मुलायम बच्चे बने हुए हैं हम, ठीक है ना। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंक करप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइस, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। समझ रहे हो? दोबारा से लगा रहा सिर्फ हूँ। एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंक करप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइस, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। भाई समझ रहे हो क्या है? अब आप खुद देखो कि हो क्या रहा है। इस बंदे ने क्या किया? सब कुछ छोड़ के बैंकरप्सी, मतलब कि वो घर भी बेचना पड़ गया उसको, अपना घर भी बेचना पड़ गया, गाड़ियां सब कुछ बेच दिया, पर एक ही मूवी पे लगा रहा, और वो दुनिया की सबसे बड़ी मूवी बनी, इंडिया की। तो आप अपने गांव के सबसे बड़ा आदमी, अपने अपने पूरे खानदान का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहते हो, 10 लाख रुपया महीना कमाने वाला इंसान बनना चाहते हो, 20 लाख रुपए कमाने वाला का इंसान चाहते हो, और दुख उठाना नहीं चाहते, लोगों की गालियां नहीं सुनना चाहते। एक बार हमें सब कुछ करना होगा, शर्म बेचनी होगी। यहाँ पर फॉरएवर में ये तो नहीं बोल रहा मैं आपको कि भाई वो टॉयलेट साफ करना, कुछ करना है, बोलना है, बोलने के लिए हमें शर्म आती है, ये करना वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। हमें सब कुछ करना होगा। तो अगर हम ये सारी चीज कर लेंगे तो हम अपने आप ही लाखों करोड़ रुपए कमा लेंगे। मेन थिंग तो वही बात आ गई ना, कि डिसीजन, आज आपने डिसीजन लेना है कि मेरे को फॉरएवर करनी है और मेरे को यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं। फॉरएवर तो एक वो है, दरिया है, सॉरी समुंदर है। लोग वहां से कोई डब्बा लेके पानी का भर के ला सकते हैं, कोई वहां से बाल्टी भर के लेके आ रहे हैं, कोई किसी ने पाइपलाइन ही लगा ली, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, आई जा रहा, आई जा रहा, आई जा रहा है। उन्होंने 5 लोगों को, 5 पिलरों को सीमेंट, रेत, बजरी भर के दी, और क्या हुआ? उससे वो पिलर खड़े किए, उन पे मेहनत करी, उनको सिखाया, खुद सीखा पहले, खुद नॉलेज ली, व्हाट इज बी पॉलन, व्हाट इज एक्टिव एच ए, व्हाट इज ये, व्हाट इज बिजनेस प्लान, व्हाट इज बिजनेस प्लान कैसे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये सारा कुछ फुल नॉलेज। वाई फॉर एवर, सॉरी, लोक व्यवहार कैसे, मेरे को उठना बैठना, कैसे पर्सनैलिटी बनानी, कैसे बात करनी है,
कैसे ये वो सारा कुछ सीखने के बाद 10 दिन लगाए इन सारी चीज़ों पे, पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, पूरी कंपनी की प्रोफाइल ले ली, सारी की बुक्स पढ़ दी, 10 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 10 दिन के अंदर एक आदमी तैयार हो जाएगा और वो अपने आप ही फिर अपने बिजनेस को बढ़ाएगा। यू आर फ्री, इधर से भी फ्री, इधर से भी फ्री, टाइम मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो गया, तो अपने आप ही बिजनेस चलेगा। हमें इसको ऑटो मोड पे लाने के लिए हमें खुद नॉलेज लेनी है। खुद नॉलेज तब लेनी है जब मैं बिल्ली वाला डिसीजन लूंगा कि मेरे को पार, बस रास्ता आर या पार, दोनों में से एक चीज काम करना है तो फॉरएवर करना है। एफएलपी करनी है, टीम फायर के साथ जुड़ना है। यहाँ पर तगड़े तगड़े लीडर्स नॉलेज दे रहे हैं, उनकी नॉलेज लेनी है और तगड़े तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप ये सारी चीज कर लोगे तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो आपको अंदर से वो होना चाहिए, भी मेरे को काम करना है, मेरे को यहाँ पर बैठा एक्साइटमेंट होनी चाहिए हर टाइम। यहाँ पर बोल रहे हैं हाँ भाई कौन 10 लाख रुपए कमाना चाहता है, कोई 2 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख, लाख, 2 लाख, 4 लाख, व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या है ये, क्या है 2, 4, 5 लाख रुपए, नथिंग। मेरे को करोड़ों रुपए कमाने हैं। ये जो हम अब सारे इकट्ठे हुए हैं ना, अभी सिर्फ 7-8 दिन से यूनाइटेड सिस्टम शुरू हुआ टीम फायर का। अभी तो देखना, अगर 6 महीने जब ये चल जाएगा ना, 8 महीने, अभी तो हमने स्टार्टिंग में जब अभी तब हम सीखने के प्रोसेस में थे, जब हमने ये गाड़ियां ले ली थी। अब जो अगला 1, 2 साल, 4 साल आने वाले हैं ना, इसमें मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज आने वाले हैं। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज आने वाले हैं। क्या आप उसमें रेड शामिल होना चाहते हो? आप लेना चाहते हो? आप हमारे साथ अगले साल पेरिस का ट्रिप आ रहा है, उस पर जाना चाहते हो? तो करो, टाइप करो, अपने ग्रुप में डालो, बताओ कि मैं पेरिस जा रहा हूं, मुझे CB करना है। क्या करना है? CB, मेरे को वो पैसा कमाना है। CB, बोलो मेरे साथ, बोलो CB, 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 CB। पागल बोलेंगे आपको आपके पड़ोसी, आपके घर वाले बोलेंगे पागल है, बोल हाँ पागल हूँ पागल। पागल होते हैं ये जो ये कामयाब होते हैं। 18 घंटे काम कर रहा है टेस्ला का मालिक, जो सबसे अमीर आदमी है इस टाइम पूरी दुनिया में। ऐसे थोड़ी ना यार, वो नीचे ही सो जा रहा है आजकल कंपनियों में, नीचे सो जाता है करोड़पति आदमी। हम यहाँ पर शर्म के मारे, शर्म ही नहीं मुकरी। यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर टेंशन को छोड़ो, काम करो, काम काम पे पागल हो जाओ। समझ में आ रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कोई गोल नहीं है। गोल बनाओ, गोल, गोल के ऊपर चलो। हम चलते हैं गर्ल के पीछे। पुराने जो संत महात्मा होते थे ना, 500-500, 1000-1000 साल बैठ के तपस्या करते थे, ओ लगे होते थे, तपस्या करते थे। अब उनके आगे अप्सराएं आती थी, अप्सराएं आके डांस करती थी और उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। यहीं पे ही हम बैठे हुए इस टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, बीच में मैसेज आ रहा है, बेबी कितनी देर में फ्री हो गई, आई लव यू बेबी, दिल दिल आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। भाई वो बेबी छोड़ जाएगी जब आप जाओगे ना, उसके पापा पूछेंगे क्या करते हो, मैं जी कितने पैसे कमाते हो, पैसे तो मैं कुछ नहीं कमाता, बस प्यार बहुत करता हूँ इसको। प्यार, उसके पापा करा देंगे शादी आपकी? नहीं, वो भी कहेगी भाई तू करता तो कुछ है नहीं। तो दोस्त, पहले पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओ। पहले एक बार पैसे कमा लो दब के। जो आपको अभी टेंशन हो रखी है जी फॉर गर्ल, ये बहुत पीछे लेकर जाएगी। गर्ल्स को बोल रहा हूँ, बॉयफ्रेंड्स को हमें पे छोड़ना है, हमने काम करना है, मेहनत करनी है। जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो चीजें हमें खराब कर रही हैं। मैं ड्रिंक करता होता था बहुत ज्यादा, मेरी आदत थी, मैं शराब पीता होता था। अब मैं मीटिंगें करनी, सारा कुछ करना, शाम को मैंने पैग लगाने, पैग लगा के टेंशन फ्री हो जाना, टेंशन खत्म हो जानी। अब टेंशन खत्म हो गई तो सारी टेंशन खत्म, सवेरे फिर उठेंगे, फिर काम पे चले जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, सारा कुछ। अब मेरा 2-2.5 साल हो गए, मैं मैनेजर नहीं बन रहा था, 2.5 साल हो गए थे मेरे को। पर एक दिन आया यार मैं शराब छोड़ू, मेरी टेंशन फ्री करने वाली चीज छोड़ू, मैंने टेंशन फ्री करने वाली शराब, कसम खा ली कि मैं ऐसा करूंगा, तब तक मैं शराब ही नहीं पीऊंगा, जब तक मैं सीनियर मैनेजर नहीं बनता, मैनेजर नहीं बनता। तो मैंने उस दिन जब कसम खाई तो अगले दिन मैंने शराब नहीं पी। शाम हो गई, मैं कहा यार अभी शराब तो पीनी नहीं। दोस्त का फोन आया, कहा, मैं कहा तेरे सामने कसम खाई थी, मैं तो आ नहीं रहा। उन दोस्तों ने 3-4 दिन बाद फोन करने भी बंद कर दिए। मैं घर पे चला गया, मैं घर पे बैठा सोच रहा, फिर मेरे दिमाग में CC चलने लग गए। फिर मेरे दिमाग में चलने लग गया बिजनेस को ऐसे बढ़ाऊं, रील बना लूं,
अभी मैंने देखा कई लड़कियां हमारी टीम में हैं, कई लड़के हमारी टीम में हैं जो इलांटम हॉल में पहले ऊपर चढ़ते थे, नीचे उतरते थे, उसी की वीडियो डाल देते थे, कुछ बोलते थे, बोल के रील बना देते थे। अब वो लोग, मैं सोचता था यार ये कितनी खराब सी रील बनाई है। मैंने उसको कहा तू रील बनाया कर तगड़ी, तेरे को लीड्स आएंगी। पर मेरे दिल में आया, उसने बोलती सर कैसी लगी, मैं कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, पर लेकिन क्या हुआ, 1 साल के बाद आज वो मेरे को सिखाती है कि सर ऐसी रील बनाया करो, ऐसे करा करो, वैसे करा करो। इतनी तगड़ी परफेक्शन हो गई है। अब वो 3-4 साल में जो लोग उस टाइम पे शुरू हुए थे उनके 200-200 फॉलोवर थे, आज उनके 50-50 हजार फॉलोवर, लाख-लाख फॉलोवर हो रखे हैं। आज वो बहुत तगड़ा बिजनेस में फैला रखी हैं, फैला रहे हैं, फैला रही हैं। तो अभी उन लीडर्स को आपसे मिलवाया भी जाएगा, बड़े सारे लीडर्स आएंगे। पर लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, ये सारी जो टेंशन हटाने वाली चीजें ना, अभी आप ये मीटिंग खत्म करोगे ना, उससे 2-4 बातें करोगे ना अपनी सहेली से या अपने बॉयफ्रेंड से, वो डिस्ट्रैक्शन फिर वहीं पे वो दिमाग सारा वहां चला जाएगा। उससे लड़ाइयाँ हो रही हैं, उससे लव भी बोल रहे, उससे ऐसे बोल रहे, ऐसे बोल रहे। क्या यार दोस्त, आज मदर्स डे है, क्या गिफ्ट करा आपने मदर को? एक सूट तक गिफ्ट नहीं हुआ होगा। मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद गोल्ड होता है, उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद के दी आपने। क्या लगेगा आपको, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आप दोगे कि नहीं दोगे? हम यहाँ पर बैठे हैं, 2-2 4-4 लाख रुपए कमाने वाले, तुम भी दो सोने का गिफ्ट। क्यों नहीं दिया भाई? है ही नहीं, 5 लाख रुपए का हार दे भाई, दो। 10-10 लाख रुपए कमाने वाले और चीजें दो, 1 लाख रुपए कमाने वाले कमाओ तो सही, कुछ तो दो, मम्मी को खुश तो करो। पर लेकिन हम खुश किसको कर रहे हैं? अपने आप को, मतलब ही हम, कि मेरे को उससे बात करनी है, मेरे को ड्रिंक करनी है, मेरे को ये करना है, हम मेरे को टेंशन फ्री हो जाएंगे, और उससे बात करेंगे सारी मीटिंग दिमाग से निकल जाएगी। पर लेकिन जी फॉर गोल लंदन की फोटो मेरे शीशे पे लगी थी, जहां पर मैं कंघी करता था। मैं बाल बनाने मिलने जा रहा हूँ किसी को, मान लो फ्रेंड को या सहेली को, लगा लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक तरफ जी फॉर गोल शीशे पे दिख गया, छोड़ पर यार नहीं जाना। बाइक पे बैठा, कार पे बैठा, उसके ऊपर लिख के लगा रखा इतना बड़ा बड़ा लंदन। बाइक पे बैठा, मिलने जा रहा था सहेली को, ऐसे मुड़ रही थी बाइक, छोड़ यार ऑफिस चल, ऑफिस को लंदन लिखा हुआ। चारों तरफ कमरों में फैला दो, बाइकों पे, मोबाइल पे, वॉलपेपर, हर जगह। अब हमारी उम्र जो है एक्चुअली में क्या है, हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे घर पे दूध ला रहे हैं। आज दूध आया होगा, चाय बनी होगी, डेली का दूध आता होगा 100 रुपए का, 3,000 रुपये महीने का दूध हो गया। बिजली का बिल आ गया 2-3 हजार रुपये, वो हो गया। सारा कुछ हो गया, खाना पीना। फिर उसके बाद हमारी वर्दियां, हमारे कॉलेज की फीसें हमने नहीं देनी ना, हमने 1 रुपया भी नहीं देना, हमने दूध के पैसे भी नहीं देने, हमने ना बिजली का बिल देना, ना हमने अपने बच्चों की फीस देनी, ना कुछ करना, ना कुछ करना। हमें क्या है, हमारे टेंशन नहीं है ना। तो हमें क्यों, क्या चलाएगा हमें? हमें कौन चलाएगा? हमारे गोल चलाएंगे। जी फॉर क्या होता है? गोल, गोल, गोल। गोल पे फोकस करो, और इस सारी चीजों से पहले डिसीजन बनाओ। डिसीजन, डिसीजन मैटर करेगा कि मेरे को फॉर एवर के अंदर जिंदगी में कहाँ जाना है, मेरे को फॉर एवर करनी है कि नहीं करनी। मैं आज आपको खुल के बोल रहा हूँ, या तो छोड़ दो भाई, आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी आपके सामने। कितने बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर प्लॉट ले चुके हैं, कोई कुछ ले चुका है, कोई घर ले चुका है, बड़े बड़े घर ले चुका है करोड़ों रुपए के, कोई करोड़ों की गाड़ियां ले चुके हैं, सारा कुछ है। और अपनी गाइडेंस की वजह से लोग क्या सिखाते हैं, किसी ने सिखाया भी पोलन भी ये होता है, होता है। मैं अभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको बताऊंगा, आप कहोगे यार मेरे को आज से ही सारे प्रोडक्ट खाने हैं। ये भी तो मैंने 1-2 प्रोडक्ट बताए हैं, एलोवेरा बताया, ये बताया। जब मैं सब कुछ बताऊंगा आप कहोगे मेरे को तो सब कुछ चाहिए। बाहर क्या करते हैं, सोशल मीडिया ऐसे करो, ब्रांड बनाओ, ये करो, वो करो, टूसीसी कराओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। जो आपने देखा कभी ऐसे ताश ऐसे रखते हैं, ऐसे एक मंदिर सा बनाते हैं, झोंपड़ी सी ताश की, फिर उसके ऊपर ऐसे पत्ता रखते हैं, फिर उसके ऊपर झोंपड़ी बनाते हैं ताश की, फिर उसके ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर ऐसे ताश का एक महल बनता है। फिर वो जो वो महल बनता है ना, उसके बाद पंखा चलता है, या ऐसे करना, वो सारी झोंपड़ी गिर जाती है। जो अनएथिकल काम से, गंदे तरीके से यहाँ पर बन रहे हैं ना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। आप बन रहे हो फुल नॉलेज के साथ, आपको ऐसी नॉलेज दी जा रही है। आप अगली ट्रेनिंग में जब अपना लीडर बनाओगे, अपना एएस बिठाओगे, उसको फुल नॉलेज दूंगा जब मैं, आपका यहाँ का टीम फायर का लीडर नॉलेज देगा, डेली नॉलेज मिल रही है, वो बंदे के अंदर सीमेंट बजरी भर रही है।
बस वो देखना, आने वाले सालों के अंदर आपको हर मंथ आपका बिजनेस आपका करोड़ों रुपए में पहुंच जाएगा। आपको बस लाना है, बिठाना है, इस ट्रेनिंग का सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनना है, बस इतना काम करना है। पर करने के लिए जी फॉर गोल बनाना है और डिसीजन लेना है बिल्ली वाला। एक तरफ आ जाओ, हम बैठे हैं आपके साथ, पूरे तगड़े तरीके के साथ आपको काम को कराएंगे। अपनी टीम का नाम है टीम फायर। आग लग रखी है सीने में, कहते हैं आग लगा लो सीने में, जब तक 10 लाख ना आए महीने में। सीबी करना है, सीबी। हम बैठे हैं आपके फुल सपोर्ट के लिए, फुल तगड़े तरीके के साथ काम करने के लिए। बस शुरू करो, वी आर विद यू। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। सारे पॉइंट्स रिवाइव करो, क्या क्या हमने आज बताएं, और अपने ग्रुप के अंदर भेजो। समझ में आ गई जी? तगड़े तरीके से शुरू करो। तो ऑल द बेस्ट।